Stable Diffusion is all about AI models. There's checkpoint, there's LORA, there's embeddings. So far, हमने use किया checkpoints only. That is this big model. But the open source community actually figured out कि कैसे Stable Diffusion को बहुत सारे models के साथ use कर सकते हैं. We can combine checkpoint and LORA जिससे कि हम create कर सकते हैं very creatively. यूजिंग LoRa एंड एम्बेडिंग स्टेबल डिफ्यूजन को सिखाया जाता है एक कॉन्सेप्ट. दैट कॉन्सेप्ट कैन बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल, दिस इज चेनसो मैन एनिमे स्टाइल LORA. If I use in stable diffusion, then it will let me generate this kind of style. Then there's Spy Family LORA. So if I use this LORA, it will let me generate this kind of style. Using LORA, you can also teach stable diffusion how you look like, जिससे कि आप खुद को भी generate कर सकते हो. Maybe in the next tutorial I'll cover this, how you can make a LORA, आप खुद को फिर generate कर पाओगे seamlessly. This is embedding. ये है emotions pack. Basically, stable diffusion was taught the concept of emotion, human emotions in a more better way. Embedding and LORA कुछ हद तक similar है. LORA are more powerful than embedding. वो ज़्यादा easily train हो जाते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा prefer करते हैं. This is detail tweaker LoRa, जिससे कि detail में improvements आते हैं. I'll just open this image and show you. See, changes in detail. Basically, आप देख सकते हैं कि इससे मैं detail में changes ला सकता हूँ. What kind of black magic is this? It does what it does. I don't want to live without it alone. And if you have to search for a style, for example, आप interested हैं Death Note style images generate करने में, then just type like this, Death Note style civitai.com. Don't use the default search bar you find here, because it's a little bugged. Use Google search and put civitai.com at the end of it. Just a little trick. And you can see there are LORA. Takeshi Obata, Death Note style LORA. I can generate in this particular style. Let me head to Stable Diffusion application. And oh, my application is a little bit different. That's because I'm using a different collab, Google Colab. I'll put the link in the description below. Actually, I'll put the link here. I've already designed it. Stable Diffusion resources. You will find this document in the description below. Just visit this Linacroof Collab Web UI. Just click here and then visit on this link. And why am I using this? Because I found it recently that this is more faster than the NoCrypt Collab Web UI. I would definitely recommend this over that. And basically, I'm not using any commit hash, जो कि मैंने पहले बताया था. The recent Stable Diffusion version is much more faster, more stable than the previous Stable Diffusion web application version. Now what I will do, in hashtag model, I have put in deliberate v2. Under hashtag VAE, मैंने put किया KLF82 या एक VAE put किया, फिर LORA को मैं पुट करता हूँ जल्दी से. कॉपी लिंक एड्रेस पेस्ट, फिर न्यू लाइन पे जाता हूँ. देन आई पेस्ट दिस, कंट्रोल V. अच्छा, मैं ये भी ले लेता हूँ. I'll download this. I'll put this embedding. अच्छा, this is embedding, right? Hashtag embed I have to give and put the download link here. This is a negative embedding, मतलब negative prompt में ये embedding बैठेगा जिससे कि stable diffusion को ये बताएगा कि हमें क्या नहीं चाहिए. Done. Detail LoRa maybe it's already available. मतलब इस collab में already ये download हो चुका है because by default ये setup किया हुआ है already. And what we will do now is just press on this download all and wait. Whoops, connection error. अच्छा, कहाँ थे? Let's go to a different link. I'll just copy everything. Look, there are two ways to fix this connection error. Just restart everything or visit a different link. इसमें different links भी दिए हुए हैं. That is very helpful. मैं इस link पर जाऊँगा. In today's video, हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे Stable Diffusion custom model में LORA या फिर embeddings का यूज करके आउटपुट को और बेहतरीन बना सकते हैं. Let's get going. And हमारा एप्लीकेशन लोड हो चुका है एरर फ्री because thanks to these links. मैं डेफिनेटली इस कोलैब को प्रेफर करूंगा आपसे. अच्छा, in batch links downloader I'll just control V. Let's press on download all. Gdown मेथड थोड़ा सा स्लो है, मुझे ARIA2 सिलेक्ट करना चाहिए था. अगर आप लिनक्स को जानते हो देन ARIA2, कर्ल, wget, gdown बेसिकली डाउनलोड मैनेजर से जो डाउनलोड करते हैं थिंग्स को लिंक्स से. ओके, मैं क्या करूंगा, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा
फिर मैं आर्या 2 पे जाऊंगा, फिर डाउनलोड ऑल करूंगा। ये जो डाउनलोड हो रहा है, आई हैव ऑलरेडी सेड यू, इट्स नॉट कॉस्टिंग यू एनी डेटा बिकॉज इट इज हैंडल्ड बाय गूगल कंप्यूटर। इन द मीन टाइम मैं क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट टू इमेज पे जाऊंगा, मैं सिर्फ सेटिंग्स को चेंज करूंगा, सैम्पलिंग मेथड टू DPM प्लस प्लस 2M SD केरस, स्टेप्स को मैं 25 कर देता हूँ, विथ एंड हाइट मैं ये रहने दूंगा 512/768 बिकॉज पोर्ट्रेट में ये बहुत ही हेल्प करता है। बैच साइज को मैं 2 बना देता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ सब कुछ। आई ऑलरेडी हैव ए प्रॉम्प्ट, ओके डाउनलोड्स हैव बीन फिनिश्ड और समथिंग। नाउ मैं लोड करता हूँ, अच्छा रीलोड, मैं VA को चूज कर लेता हूँ, KLF8 एनिमे एनी लॉरा, हाँ एनी लॉरा चेक पॉइंट मैं यूज कर रहा हूँ। ये चेक पॉइंट दिस इज रियली ग्रेट विथ एनिमे स्टाइल, बेसिकली LORA के साथ ये बहुत ही ज्यादा कंपेटेबल है एंड स्टैंडअलोन भी ये बेटर है। I'll go to additional networks and check what kind of LORA I am having। ये देखो कितने सारे LORA है मेरे पास और मैं खुद का पोर्ट्रेट जनरेट नहीं करूंगा। लेट्स से चेनसो मैन स्टाइल्स कुछ जनरेट करता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है। CSM एनिमे स्टाइल, ये मैं सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ इस नाम को। व्हाट यू नीड टू डू टू यूज LORA और एम्बेडिंग, दोनों में से कुछ भी, आपको प्रॉम्प्ट में वो चीज लिखना पड़ेगा। फॉर एम्बेडिंग आपको ये ट्रिगर वर्ड लिखना मस्ट है, बट फॉर LORA इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट डज हेल्प। आप लिखे तो अच्छा है। एंड लॉरा के लिए एक एडिशनल प्रॉम्प्ट भी लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। एनीवेयर इन दी प्रॉम्प्ट मुझे ये लेस देन सिंबल देना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट, फिर LORA, फिर कोलोन, कौन सा लॉरा में यूज करना चाहता हूँ, CSM एनिमे स्टाइल ऑफसेट, और इसका वेट कितना परसेंटेज पावर इस LORA का यूज होगा, ये वेट की तरह ही है। शायद मैंने ये नहीं बताया, प्रॉम्प्ट में वेट बेसिकली कितना ज़्यादा अटेंशन स्टेबल डिफ्यूजन पे करेगा, इसको बढ़ाने के लिए मुझे एक ब्रैकेट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर प्रॉम्प्ट को अंदर डाल देना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देना पड़ेगा जहाँ पर मैं एंड करना चाहता हूँ, फिर मुझे कोलोन देना पड़ेगा और इसका वेट मेंशन करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, दैट इज बेसिकली डबल ब्रैकेट जैकेट अपर बॉडी डबल ब्रैकेट क्लोज्ड। ये चीज जो है सेम है with this, but most of the time I will prefer you use this 1.1 by default। ये डबल ब्रैकेट यूज करने से 1.1 हो जाता है वेट, ट्रिपल ब्रैकेट यूज करने से इंटू 1.1 इंटू 1.1 1.22 हो जाता है, फिर 4 ब्रैकेट्स में अगर यूज करूँ तो ये 1.44 हो जाता है वेट। आई विल रिकमेंड यू टू स्टिक विद दिस बेसिक थिंग, दैट इज कोलोन, फिर इसका वेट मेंशन करो। लेट्स कम बैक टू लॉरा, 0.4 में देता हूँ। LORA में आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सपेरिमेंटेशन फ्रॉम 0.4, फिर अगर स्टाइल मैच नहीं हुआ तो फिर मैं बढ़ा देता हूँ वेट को अप टू 0.8, 1 भी कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई डोंट नीड घिबली स्टाइल, ओके 1 बॉय, लेट्स जनरेट 1 गर्ल दिस टाइम, देन रेड स्कार, ब्लैक आइज, जैकेट, अपर बॉडी, ओके मुझे ये रिमूव कर देना है, अदरवाइज मुझे वेट नहीं चाहिए। हाँ, स्माइलिंग में मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा देता हूँ। मैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट ये सिंपल रहने देता हूँ। मैं 3 साइजेस जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। 40% पावर है हमारे LORA का। ओ अच्छा, मैं ट्रिगर वर्ड डालना तो भूल ही गया। ट्रिगर वर्ड डालने के लिए मुझे यहाँ पर कहीं पर भी मुझे लिखना पड़ेगा CSM एनिमे स्टाइल, शायद यही था। अब मैं प्रेस करूंगा जनरेट या कंट्रोल एंड एंटर। And one thing I didn't tell you, if you use this collab, it will be best for mobile phone because इसमें by default आपको मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस देखने को मिलता है। I'll show you on the screen, as you can see, ऐसा कुछ मिलता है by default। अगर आप ये सिलेक्ट कर लेते हो रेपो टाइप एंड आप नो, आपको मोबाइल स्टाइल देखने को मिलेगा ये एप्लीकेशन। lol, from which angle does it feel like CSM? Okay, a little, very little। मैं क्या करूँगा, इस पावर को बढ़ा देता हूँ, अप टू 1 करके देखता हूँ क्या होता है। इट इज मैचिंग अ लिटिल बिट, जस्ट द आईज। अगर मुझे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जनरेट करने हो फ्रॉम दैट एनिमे, लेट्स से माकीमा और समथिंग, फिर मुझे एक्चुअली और एक LORA चाहिए जो कि माकीमा लोरा है, वो आप कर सकते हो, बट आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट। और एक मैं काम करूंगा, आई ऑल्सो हैव एन एम्बेडिंग। मैं अब एम्बेडिंग को पुट कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आप लेस देन और लेफ्ट एंगल ब्रैकेट का यूज करें, मैं राइट क्यों कर रहा हूँ, या देन यू विल एक्चुअली सी दिस ऑटो कंप्लीट स्टफ।
यू कैन सी दीज काइंड ऑफ LORA और एम्बेडिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। वर्जन 1 एम्बेडिंग, ये एम्बेडिंग है, ये बैड हैंड्स है। इस पर अगर आप क्लिक करते हो और या फिर अप एंड डाउन एरो की विथ कीबोर्ड, आप ऐसा भी कर सकते हो। डाउन एरो की you will go down, up arrow key you will just go up in this list. Let's use this bat prompt version 2. ये मैं यहाँ पर put कर देता हूँ. Now I will try generating the same thing. To generate the same thing, what I need is seed है 2. Let's see what happens. You can see it changed just a little bit because of this bat prompt embedding. See, the style actually changed a little bit. Yeah, this is seat 2, ये है seat 3 और ये है seat 4. Okay, now it kinda looks like a real Chainsaw Man character. But this is not the efficient way. आप चाहे तो और एक LORA use करके इसके ऊपर combine करके, for example, I could, if I had that character LORA, let's say Makima LORA, then I could use something like this 0.4 और ऐसा करके यहाँ पर trigger word भी मुझे लिखना पड़ता. मैं यहाँ पर लिख देता like this I would have written. Let's still try. I don't have this LORA, फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ ये जनरेट कर पाता है या फिर नहीं. नाउ इट्स गोइंग मोर एंड मोर क्लोज जैसे ही मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ. सो मे बी इस चेक पॉइंट पर ऑलरेडी कुछ डेटा थे फॉर दिस माकीमा कैरेक्टर ऑफ चेनसो मैन और समथिंग. दिस इज द बेस्ट ऑफ स्टेबल डिफ्यूजन. आप कुछ भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हो थैंक्स टू दिस ओपन सोर्स कम्युनिटी जिन्होंने ये स्पेसिफिक स्टाइल बना के रखे हुए हैं. ऑसम क्रिएटिविटी, आई मीन इन्फिनिट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इससे आ जाएगा. मैं लाइक कर देता हूँ. अरे इट्स ऑलरेडी लाइक. ओके, लेट्स लाइक दिस, लेट्स लाइक दिस, लेट्स लाइक दिस, लेट्स लाइक दिस. अब मैं इमोशन को थोड़ा सा ट्राई करता हूँ. ये पैक हैप्पी 512 एम्बेडिंग को यूज़ करना है या फिर टेक्सचुअल इन्वर्शन, ये भी दूसरा नाम है. इनको अगर आप यूज़ करोगे तो फिर आपको सिंपली ट्रिगर वर्ड पुट कर देना है हैप्पी 512, फिर हो जाएगा जस्ट लाइक दिस. हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट में भी पुट किए थे जस्ट ट्रिगर वर्ड. हमें कुछ ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे एम्बेड और कुछ वो कितना वेट, नथिंग लाइक दैट. मैं ये करके देखता हूँ कैसा आता है. 2 यूज़ कर रहा हूँ एज ए सीड. द इमोशंस चेंज्ड अ लिटिल बिट, राइट. नाउ इट्स स्माइलिंग. थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड, थोड़ा सा आर्टिफैक्ट सा आ रहा है कुछ. ये जो हैप्पी 512 है ना, ये रियलिस्टिक फेसेस पर ट्रेन किया हुआ है. इस नेगेटिव प्रॉम्प्ट को कम करके देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ क्या होता है. द आईज, there's a little bit of artifact, but as you can see now it's more clean and clear, right. this is probably fine. मैं अगर अपस्केल में अगर हाई रेस फिक्स कर दूँ तो फिर मुझे मिल जाएगा. there should be a high res fix. करके देखते हैं कैसा होता है. एनिमे शार्प फूलहार्डी रमाइक्री मैं करता हूँ इस बार. ये करता हूँ. हाई रेस स्टेप्स मुझे नहीं चाहिए. डिनॉइजिंग स्ट्रेंथ 0.5, अपस्केल बाय 2. जनरेट बटन पर क्लिक करके करते हैं, देखते हैं क्या होता है इन 3 इमेजेस पर. द आईज आर रियली फिक्स्ड, राइट. एक्चुअल रिजल्ट्स में आईज फिक्स हो गए बट चेनसो मैन का वो जो स्टाइल है वो चला गया. दैट्स एक्चुअली माई फॉल्ट. डिनॉइजिंग स्ट्रेंथ 0.5 में था, मुझे ये 2 करना चाहिए था तो फिर ये फिक्स कर देता डेफिनेटली. एज यू कैन सी नाउ मैंने डीनॉइजिंग स्ट्रेंथ को कम किया था, 0.2 किया था. अब देखो आइज थोड़ा बहुत फिक्स्ड आ रहा है, राइट. मे बी मैं ब्यूटीफुल डिटेल्ड आइज को भी हटा दे सकता हूँ बिकॉज इट माइट बी इंटरफियरिंग विद दिस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग. इट्स जस्ट अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन. नाउ द आइज आर कमिंग गुड इनफ. मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव इमेजेस. रिसेंटली मुझे पता चला कि मैं अगर इस इमेज के पास जाऊँ और यहाँ पर कॉपी जनरेशन डेटा करूँ और बेसिकली इस प्रॉम्प्ट में कंट्रोल ए करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ. अगर मैं इस एरो पर क्लिक करूँ तो फिर लिटरली इट विल गेट दिस इंफॉर्मेशन एंड फिल माई सेटिंग. इट ऑल्सो वर्क्स विथ इमेजेस जो कि आप डायरेक्टली डाउनलोड करते हो स्टेबल डिफ्यूजन वेब यूआई से. लेट मी शो यू. मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा, ब्राउजर पे जाऊँगा और प्रॉम्प्ट में मैं रख दूंगा. बेसिकली आई विल रिलीज माई माउस. ये देखो कुछ हो रहा है. मुझे इस फोटो का प्रॉम्प्ट मिल गया. इस बटन पर क्लिक कर सकता हूँ और जनरेशन डेटा ये कॉपी करके दे देगा. एज यू कैन सी 2 MSD कैरेस हाई रेस फिक्स था इसलिए टिक मार्क है ऑलरेडी 0.2. एंड लास्टली मैं काम करूँगा, मैं इस इमेज को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा विथ डिटेल लॉरा. मैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट करूँगा, फिर एरो की दबाऊंगा, फिर एंटर प्रेस करूँगा. एरो मतलब डाउन एरो की मैं दबा रहा हूँ और जिससे कि मैं नेविगेट कर पा रहा हूँ बिटवीन ऑल दीज ऑटो कंप्लीट
LoRa, दिस इज LoRa, एम्बेडिंग LoRa, फिर मैं ऐड डिटेल करूँगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 मुझे पुट करके दे रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको नेगेटिव बना दूँगा। नेगेटिव मतलब मैं यहाँ पर भी -1 कर सकता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैन, इमेज विल बी रियली बैड। पोर थिंग से कुछ आर्ट मिलेगा मुझे। हे, दिस इज गिविंग मी चिबी, लिटरली इट्स गिविंग मी चिबी काइंड ऑफ स्टफ। मुझे चिबी स्टाइल मिल गया। अगर ये ऐड डिटेल मैं करना चाहूँ तो फिर मुझे 1 पे रखना पड़ेगा या फिर 0.5, 50%। अगर मैं इस पावर को नेगेटिव कर दूँ तो फिर नेगेटिव असर हो जाएगा। यहाँ पर भी हुआ नेगेटिव असर। चेंसो मैन स्टाइल से कुछ और ही बन गया। अच्छा, probably that is it for this video. We actually in detail learned how we can use LoRa, how we can use embedding और ये सारे ट्रिक्स, जैसे कि 1 हम वेट ऐड कर सकते हैं और -1 अगर हम वेट ऐड करें तो फिर नेगेटिव असर पड़ेगा। पावर ऑफ LoRa, आप इसको वेट कह सकते हो, इसके पावर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। और हमने देखा कि एम्बेडिंग्स के लिए हमें सिर्फ डाउनलोड करना पड़ेगा और एक ट्रिगर वर्ड है उसको मेंशन करना पड़ेगा। एंड फॉर LoRa बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम इसको भी मेंशन करें, LoRa का पावर, और वो ट्रिगर वर्ड जो ऑलरेडी डिफाइंड है उसको भी मेंशन करें। देयर वाज अ वे अर्लियर जिससे कि हम देख सकते थे कि कौन सा ट्रिगर वर्ड है इस एप्लीकेशन के अंदर, बट अभी वो काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई, आई एम नॉट श्योर, मे बी इट विल बी फिक्स्ड इन लेटेस्ट अपडेट्स। बेसिकली ये एडिशनल नेटवर्क्स टैब या फिर एक्सटेंशन जो आप देख रहे हो यहाँ पर ही दिखाता था पहले, बट अभी ये नहीं दिखाता डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स। इन दी नेक्स्ट वीडियो मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपने LoRa को ट्रेन करके मुझे जनरेट करूंगा इन एनी स्टाइल, लेट्स से चेनसो मैन स्टाइल, स्पाई फैमिली स्टाइल, डेथ नोट स्टाइल, वन पीस स्टाइल, whatever, realistic style. It's much harder to make a realistic person animatic. If you stayed till this far, I hope you really enjoyed it. It was kind of things in detail. I know it's a lot of jargon today because I discussed literally that new collab, then the UI change might be a little bit distracting to you. आप पुराना collab use कर सकते हो, but I will recommend you to switch to this because it is much better. So that was it for this video. Thanks a lot. If you like this kind of content, then hope you have a nice day. I'll see you later.